नमस्कार, नमस्कार। अ, मैं आप सब मैं शुरू कर सकता हूँ अपनी बात? बिल्कुल, आप सब कर सकते हैं। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल अ, सर। अच्छा, मैं आप सब लोग तो पहले जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम कहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस संकट के समय में अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे होंगे और मैं ये भी समझता हूँ कि इस समय व्यक्तिगत सुरक्षा ही सबसे बड़ा सवाल है। अब सरकारों की तरफ न झाँकें, क्योंकि वे भी असहाय की तरह हैं और एक बड़ा बोझ इस देश में है और एक सामाजिक दायित्व जो हमें निभाने चाहिए, वो करने ही चाहिए। देखिए, आई वुड put the whole thing in a different way. See, what has been happening in the past is that I'm totally unaware of some issues which are otherwise very pertinent, but unfortunately, we were waiting for Corona to trigger the things which we had never been thinking before. And it's a very unfortunate that the society currently that we have is an economy maniac society. Everything you count in terms of economy, even it's an irony, and I take it differently that what is happening globally is more discussed in terms of GDP. That not only the whole disaster have hit so many lives and so many things had come, but you see, ultimate expression had come as coming in that GDP has gone totally down and what is going to happen in future. But at this point of time, I would definitely tell everybody that uh, right that we have lost a kind of GDP which I place a luxury, a lavish life, because the industry's contribution, if you look into from top to bottom, is more towards the materialist, make society materialistic. And here we unfortunately 200 years now, almost 200, 300 years, that every country in the world had one agenda, that how best they are growing economically, and that is placed as a gross domestic product. This gross domestic product idea came sometime in 1944 around, and European guys who were the beginner of industrial revolution thought of having a measure which can see that where we grow, how we are growing, and that they placed it as a GDP. All of you know that GDP is what? It's an agriculture, partly industrial growth, plus infrastructure and the services we were able to give in a given year. It collectively is called gross domestic product. It does not speak anything of status of soil, the ecosystem growth, the status of water, forest, and so on. It has never done. Now, this scenario is totally different now. If we go deeper, and Corona has definitely begin to tell us that something and the same nature has produced Corona, which has given us birth. So, Corona is a part of the same universe. It has not come from other part of the world. It has come within our ecosystem only. And exactly, it is something like if you destroy a forest and you do not manage it well, so some weedy plants come, like lantana, parthenium coming into you. Exactly, if you do not manage ecosystem properly, invading species come. It cannot be invading species in the forest. It can be invading in the human lives also. Now you have invaded them. If you look into your past, I've been, I'm sometime I've been reading the newspaper. The lions have come on the road. The England people have first time seen after 240 years the white-tailed eagle, and the France says that the first time they have after 100 years
They have seen the grey wolf, and so is the things. Hundreds of such things are coming. They have come in the road. In India also, there are many kind of species. They say they have come in the road, they have come in the cities. No, they have not come in the cities. We had been in their place, and they are coming back to their place, trying to see what is all happened, where the human species have gone to. देखिए ऐसा है कि दिस ईयर द बायो इस ईयर जो इन्वायरमेंट डे का टॉपिक रखा गया, विच आई फील इज वेरी लेटली डिसाइडेड, बायोडाइवर्सिटी, एंड इट इज लेटली आई बिलीव, क्योंकि मुझे लगता है कि बिगिनिंग में एक बात हम सबको सोच लेनी चाहिए थी कि भाई ये पृथ्वी हमारी नहीं है। अगर हम ये मान के चले ये मनुष्य ही इसमें सब कुछ है, और सोचा ही है हमने, हमने कभी भी अन्य प्राणियों को, अन्य जीवों को कोई भी स्थान नहीं दिया। और अगर कुछ दिया तो इस रूप में दिया कि हमें लगा कि गाय हमें कुछ दे सकती है तो डोमेस्टिकेट कर लिया, कुत्ता हमारी गली में भूख सकता है, घर में ले आओ उसको और बांध लो, वो हमारी सेवा कर सकता है, और बैल और तमाम बिल्ली सिल्ली हमने डोमेस्टिकेट कर। और जो वन्य जीव थे उनके प्रति या तो हमने बड़े रोमांटिक दृष्टिकोण से कि साहब आप कॉर्बेट पार्क जाइए, राजा जी जाइए, ये देखिए सो देखिए, उनसे ज्यादा हमने कभी उनको समझा भी नहीं। और ऐसे ही नहीं, वो हम ही मनुष्य के टुकड़े थे कि जिन्होंने पोचिंग की, कभी हाथी के दांत निकाल दिए, कभी शेरों को और बाघों को मार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन के बराबर एक ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी निकला इस पूरे जैव विविधता में, बायोडायवर्सिटी में, जिसने ही सारे इकोसिस्टम को खत्म किया। वरना कोई भी वन्य जीव ऐसा नहीं है जिसने अपने घर को ना संभाला हो, घर को बेहतर ना किया हो। हम ही एक ऐसे मनुष्य निकले अपना घर बनाने के लिए दूसरों के उजाड़ दिए, और ये हमें इस बार बड़ा भारी पड़ गया। और भारी भी ऐसा पड़ गया ना, देखिए कि प्रकृति कितना बड़ा अ, अंदाज होता है प्रकृति का। उसने हमारे बीच में एक ऐसा अदृश्य जीव छोड़ दिया, दिखता तो चलो समझते कुछ समझते, उसने ऐसा अदृश्य जीव छोड़ दिया। और शायद सबसे बड़ा दंड भी है हमारे लिए, हमारे बीच में तो अदृश्य जीव ही आना चाहिए था, वो ही हमें साथ सकता था। किस रास्ते कहां से कहां कैसे हम तक पहुंचेगा, प्रकृति की ही देन है। प्रकृति ने कहा अब आप संभलिए। अब कितनी अजीब सी बात है, तो दुनिया भर में जो तमाम चीजें हमने जुटाई थी, गाड़ियां और जो तमाम साधन हमने अपनी बेहतरी के लिए थे, सब एक किनारे हो गए और कोरोना ने सबको घरों में बंद कर दिया। प्रणाम करिए प्रकृति को, सांस तो मिली आपको, पानी तो मिल रहा है आपको, और कृपा करे, धन्यवाद दे किसानों को कि रोज खाना खाया होगा, इस दौरान में भी 5-5 बार खाया होगा, क्योंकि घरों में बंद थे और करते क्या। पर हम इन चारों पांचों चीजों को अभी भी नहीं स्वीकारेंगे। हम किसान को अभी भी उठ के प्रणाम नहीं करेंगे, भगवान गणेश की पूजा जरूर करेंगे, कृष्ण की, शिव की, हमको ये दे दो ये दे दो, पर जो देता है उसको नहीं पूजते। अब आप देखिए इस पूरे दौरान में आपको लौकी भी मिली, आपको गोभी भी मिली, आपको सेम भी मिली, आलू भी मिला, प्याज भी मिला। अगर ये भी बंद हो जाता, अगर किसान ये सोच लेते कि भाई इनको नहीं देना जाओ, तो आप सोच लीजिए आप कहां जाते। इस दौरान हमें सब कुछ मिला, और ये हमारे लिए संकेत है कि हवा मिली, पानी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन हम कितना समझ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ लगातार समय से, 100-200 सालों से, हमने, आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमने दुनिया से 8 मिलियन स्पीसीज को किनारे लगा दिया। 1 मिलियन स्पीसीज रास्ते लग गई और 1 लाख गायब हो गई। क्यों, क्या ये उनकी दुनिया नहीं थी? अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती जो करीब 65 मिलियन ईयर पहले एक आई थी, जिसमें डायनासोर भी चले गए थे, एक और उनका पृथ्वी से टकराया था, सब खत्म हो गया था, फिर दोबारा जीवन शुरू हुआ था, या नई प्रजातियों ने जन्म लिया था। लेकिन इस बार की आपदा तो नितांत रूप से मनुष्यों की ही कृपा है। अगर आज किसी को कोसना है तो एक दूसरे को कोसिए। आप कोसिए उस प्रवृत्ति को अपनी, जिसने ठाट बाट से जीवन जीने की कोशिश की, दूसरों का हिस्सा कितना मारा
कितने गरीबों के प्रति हम गंभीर रहे, वो एक सवाल है। और प्रकृति ऐसे ही दंड लाती है। अब कैसे नहीं इस बात को मैं स्वीकारूं और प्रभु को प्रणाम करूं, और इसीलिए मैं प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर नहीं करता कि इस आपदा की बड़ी मार किस पे पड़ी। अगर आप दुनिया को देख लें, अमेरिका, स्पेन, इटली, जिनका जीवन वैभवताओं से भरा पड़ा था, और अति वैभवता का ही परिणाम था कि उनमें तथाकथित जो इम्यूनिटी थी, या तथाकथित जो क्षमताएं थी, जो फिर भी निश्चित रूप से इस देश में लोगों के बीच में है, वो उनमें नहीं थी। ये प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। उस प्रभु ने समझ लिया कि किससे चलेगी शिक्षा। अब आप, मैं और बहुत से ऐसे देश हैं जो हम सुबह उठ के अमेरिका और इंग्लैंड को प्रणाम करते थे। हम ही हैं इटली जाने के लिए व्याकुल थे। स्पेन का टिकट अगर आ जाए तो रात 6 नींद नहीं आएगी कि स्पेन जाना है। और अब तो चाइना भी नंबर में आ गया था कि चाइना कैसे पहुंच सकते हैं। जाइए, छूट है, कितने जाना चाहते होंगे। क्या आज आप फिर इनको सुबह उठ के प्रणाम करते हैं? आप कतई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रकृति ने सिखा दिया है कि सबसे बड़ी चीज जीवन है, और जीवन हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से और खेती बाड़ी से चलता है। पहले उसको संभाल लो, और तब अपनी आवश्यकताओं की, अपनी विलासिताओं की बड़ी चिंता करो। यहां तक का एक बड़ा मैसेज दे दिया है। क्योंकि इस पूरी दौड़ में अगर आप एक नजर डालें, इस मनुष्य ने क्या किया, टुकड़ों में बांटा। पहले भगवान का जन्म दिया, फिर ये कहते हैं ये इनका भगवान है, ये तुम्हारा है, किसी के कोई भगवान है। बटे, वर्गों में बट गए, हमने बांटने की कोशिश की, और फिर हमने इस हालात में बांटने की कोशिश की कि जातियां ही तय कर दी। अब आप बताइए कि प्रकृति ने कभी क्या किसी को कोई चीज के लिए मनाही की थी? अगर एक वृक्ष है, वो अपने नीचे छाया सबको देखेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि किस जाति का है, किस वर्ग का है, ब्राह्मण है या आप ठाकुर है या आप क्या है। प्रकृति से ही सीखने का समय था। हमने कभी नहीं समझा। और अपने देश को तो मैं इसलिए भी ज्यादा खोजता हूँ कि हमारा ही देश था जहाँ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी की पूजा होती है। नदियों को प्रणाम करते थे, वृक्षों को पूजा जाता था। हम ही पिछड़ गए। हम ही ने अपनी नई शिक्षा में कभी भी इनका हिस्सा नहीं बनाया। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो हम दकियानूसी मानते हैं। अरे, इंडियंस, दे वर्शिप ट्री, दे से इट इज मदर, rivers are mother, they are mothers. So if you go into the fact is that they are truly हमको बचाते हैं, हमारा हिस्सा है जीवन का। और इसीलिए हमारे संस्कृति में, हमारे संसार में हमने इनको भगवान का दर्जा दिया था। ये मान के चले थे इनकी सुरक्षा रक्षा ही हमारी रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन इस मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी ने एक बात समझनी चाहिए, कल्चर और नई सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति, कल्चर कंजर्वेशन सिखाता है, और जो सिविलाइज है कम्युनिटी, वो कंजम्पशन सिखाते हैं कि आप कंज्यूम करो, कितना कंज्यूम करोगे। जबकि कल्चर, देवी देवताओं ने के समान पूजा गया था, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को। वहां कंजर्वेशन की भावना थी। आप कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर वाज समथिंग दैट वी हैड इन आवर कल्चर। बट यू लुक एट, see, this total thing had been totally lost, and we are also the part of that materialistic society. ये पश्चिम की हवाएं चली हर चीज में हमने उनको मान लिया, उन्हीं को धर्म माना, उन्हीं को कर्म माना, और जरा भी शर्म नहीं की कि हमारे अपने संस्कारों को हमने किनारे कर दिया। हम आने वाली पीढ़ी को भी वैसे ही तैयार करते हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को उसी सभ्यता की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, हमारे जीते जी अगर इतना बड़ी महासंकट आ गया है, तो आप समझिए कि आने वाले समय में कितने ढेर सारे संकट जो हमको तोड़ देंगे, मोड़ देंगे। और हमने जो इकोनॉमी को मॉडल खड़ा किया, आप तो देखिए, मॉडल इकोलॉजी बेसिस होना चाहिए। इट इज वेरी डेमोक्रेटिक है इकोसिस्टम का मॉडल। जबकि इकोनॉमी का मॉडल क्या है? अपने देश में आप ये मान के चलिए कि 63 बिलियनर होल्ड रिसोर्सेज मोर देन द बजट ऑफ दिस कंट्री। लुक एट, आप देखिए कि दुनिया भर में करीब 2153 लोग ऐसे हैं
जिनके पास 4.6 बिलियन लोगों की जितनी संपत्ति है उनसे ज्यादा है। आप एक तरफ इस तरह की जो होर्डिंग है, जो एक तरफ का इकट्ठा किया हुआ धन आदि है, आज अमेरिका के किस काम आया? वो इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई जिसके पीछे भागते चले गई जीडीपी। और आज तक हम करीब 25 इसी पूरी धंधेबाजी में हमने सबसे बड़ा नुकसान पृथ्वी और प्रकृति को दिया। 25% of total species have been lost, and there is a report called Nature Risk Report which says that कि आपकी जो पूरी इकोनॉमी है 153 इंडस्ट्री सेक्टर कंज्यूम अबाउट 50% ऑफ देयर जीडीपी कम फ्रॉम द नेचर। अगर 50% इस वर्ल्ड की जीडीपी नेचर से है और नेचर का कोई ग्रोथ मेजर नहीं है, नेचर का स्टेटस का पता नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी सोच नहीं पैदा हुई कि हम जिस तरह से जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं एक इकोसिस्टम ग्रोथ की भी तो बात करें, वो हमने कभी भी नहीं की। हम सोचना ही नहीं चाहते। अब सवाल खड़े हैं बहुत ढेर सारे, और यही समय है कि जब हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हम किस तरह अब संभलें और संभालें। मेरा अपना ठोस मानना है कि इस समय भारत को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने देश को अपनी परंपराओं के प्रति झुकना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो कौन सा विज्ञान है जिसकी कल्पना जो आज नया विज्ञान कर रहा है हमें पता नहीं था। किस बृहस्पति की कल्पना नहीं की गई, मंगल के बारे में ना कहा गया हो और चंद्रमा के लिए क्या ना सोचा गया हो। हमारे व्यवहार कितनी अजीब सी बात है कि जब भी ये कहा जाता है कि हॉरोस्कोप की चर्चा होती है तो हॉरोस्कोप में कहा जाता है कि ये सब जो है बकवास है, लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू अध्ययन करने की कितनी हमने पहल की। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में जब हमारा वर्ष जन्म पत्री बनती है उसमें चंद्रमा को आधार में रखकर ही हमारा जोडियक साइन तैयार होता है। आपको पता है इस बात का? वे हमारा जोडियक साइन where our moon is placed is based on that, or either the sun, because these are the two very powerful planets. Chandrama is the closest one, and the sun is the energy full. So when we are born, where they were located at that time of my birth, and that impact, and how can you ignore the impact? You see, if this principle of gravity, which we cannot overlook and ignore, is a scientifically proven now that there is a gravitational forces which works, and the whole planets are in different locations because of gravitational forces. That same gravity, when the Chandrama, the moon is closest to us, why did they do it? Why Chandrama was decided the zodiac sign? There is a simple principle. Whenever there is Chandrama is close to the earth, what happens? Tides come. अब समुद्र में ज्वार भाटा होता है, बिकॉज वी ऑल्सो ह्यूमन हैज अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है, और अगर वो पानी है तो वो उस चंद्रमा जब नजदीक आएगा या चंद्रमा जहां भी होगा उसका ग्रेविटेशनल असर हमारे को पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि चंद्रमा सबसे प्रभावित ग्रह है हमारे लिए, और सूर्य इसलिए है कि वो एनर्जी सोर्स है। लेकिन अगर आज इसको इंटरप्रेट करें तो इसको करेंगे। और हमारी मजेदार बात यह है कि हम तो माने ना माने, लेकिन अब विदेशियों ने सोचना समझना शुरू कर दिया। अब जब उस रास्ते ये साइंस आएगी तो आप और मैं बड़े खुश होंगे कि अमेरिका ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, लेकिन अपने विज्ञान पर हम गंभीरता नहीं दिखाते। पहली बार एक अच्छी बात तो ये भी कि डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल जो एचआरडी मिनिस्टर बने देश में, उनसे एक बातचीत के दौरान अपने एजुकेशन का सिस्टम एक इंडियन नॉलेज सिस्टम होना चाहिए, बातचीत थी। अच्छी बात है, उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए एक डिवीजन की शुरुआत कर दी एचआरडी मिनिस्ट्री में, और उस डिवीजन का मतलब ये नहीं होगा, बल्कि वो ये भी होगा कि हम अपने देश के विज्ञान की चर्चा करें, साइंटिफिकली बोले। मतलब हम
हवा में बात ना करें, साइंटिफिकली वैलिडेट करते हुए अपने नॉलेज, साइंस, विजडम को इंटरप्रेट करें। और मुझे लगता है इस देश की ये बहुत बड़ी शक्ति बनेगी आने वाले समय में, कि तमाम तरह की कल्पनाएं जो विज्ञान की आप करते हैं, सोचते हैं, ये पहले की जा चुकी हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि वी आर ऑब्सेस्ड विद द इंटरनेशनल जर्नल, वी आर ऑब्सेस्ड विद द अमेरिकन साइंस, इंग्लैंड, आई मीन साइंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड देयरफॉर वी डू नॉट वर्क seriously even our own science knowledge that we generated, and that was the basis of and the source of knowledge and science globally, and that is why we had been placed as a guru of पृथ्वी। अब जब से हम लोगों की नई सभ्यता ने जन्म लिया, जिसने मेटेरियलिस्टिक हमें बनाया, तब से हम पश्चिमी गुलामी में पड़ गए। हमें चाइना की चीज अच्छी लगती है, हमें इंग्लैंड से कुछ कुछ ले आए तो हम खुश हो जाएंगे, और चांदनी चौक से कुछ खरीद के कोई ले आएगा तो जरा हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा कि भाई हम तो यहीं से खरीद के ले आए। हम ऑब्सेस सोसाइटी हैं, गुलामी है अभी हमारे अंदर। लेकिन अब जब दो बड़ी घटनाएं हो चुकी, कोविड-19 में इस देश ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है, और अगर डिजीजेस बहुत ज्यादा भी हो तो डेथ रेट रिलेटिवली कम है, क्योंकि हमने दाल भात खाया है, हमने दाल भात रोटी सब्जियां खाई हैं, हमने जड़ी बूटियां खाई हैं, और इसीलिए हम इनसे झेल सकते हैं। और जिन्होंने ज्यादा मैकडॉनल्ड का सामान खाया होगा, या केएफसी का खाया होगा, या चाउमीन से लेके और तमाम तरह के उत्पाद खाएंगे, वो झेल ले। अब तो समय ये समझने का कि भाई अपने ही खाने में दम है। अब वो जो चाउमीन और वो तमाम मोमो सोमो चाइना वालों को नहीं बचा पाया, या मैकडॉनल्ड या केएफसी अमेरिकन को नहीं बचा पाई, तो हमको क्या बचाएगी? इसलिए समय है अपनी भाषा, वेशभूषा और भोजन पर विश्वास करें। और इसीलिए आईटी के इंडियन नॉलेज सिस्टम की शुरुआत हुई। और दूसरा बड़ा इश्यू जो मैं अंत में कहना चाहूंगा, तो इस रूप में कहना चाहूंगा, देखिए एक बड़ी आवाज बनी है, बड़ी आवाज, एक ऐसी मुद्दे की आवाज जो इसको देश के सम्मान के लिए भी है, अपने राज्य के सम्मान के लिए भी है, कि ये समय है कि जहां इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और जमीन पे आ गई, और पर हमको पानी भी मिला, हवा भी मिली, और भोजन आदि भी मिला। और ये भोजन भी सिर्फ इस प्रताप से बना क्योंकि पानी था, मिट्टी थी, इसलिए हमने भोजन भी पकाया, बनाया। तो एक समय आया है कि वो इकोनॉमी जिसके पीछे हम पागलों की तरह दौड़ते चले गए, वो तो आ गई जीरो पे। इसलिए वो स्टेबल इकोनॉमी नहीं हो सकती, वो स्यूडो इकोनॉमी है कि जो ऊपर चढ़े नीचे उतरे, उसको कैसे मैं साथ दे सकता हूं? मुझे तो उस इकोनॉमी पे काम करना चाहिए जो स्टेबल हो। और स्टेबल इकोनॉमी आपकी इकोसिस्टम से आती है, आपकी हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से आती है। अगर वो स्टेबल है तो भाई आपके पास सब कुछ है। तो अभी जीडीपी तथा कथित, जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तो हम पगलाए हुए हैं और इससे मुक्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो हम पूरी तरह समा चुके हैं। लेकिन इसी समय आपको कोई भी कोना दिखाई दे, उससे आप झांके बाहर और आप कहें कि एक और ग्रोथ मेजर चाहिए, जो ये बताए कि कितनी हवा ठीक की, कितने जंगल बढ़ाए, क्वालिटी क्वांटिटी, कितना पानी बेहतर किया आपने, कितनी मिट्टी को ऑर्गेनिक किया। कलेक्टिवली जीडीपी के साथ पैरेलल ये दे दीजिए कि भाई जीडीपी इकोनॉमी है तो जीपी इकोलॉजी है। और भी सरल भाषा में मैं सिखा देता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जीडीपी जहान है, वो जो आप तो हवा ये चाहिए, कारें चाहिए, बीएमडब्ल्यू और मारुति और उसके एक एक से मॉडल, वो जहान है। और जीईपी जान है। जीवन आपको जीईपी से मिलेगा, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी जीवन देगी, वो जान है और वो जहान है। तो आप तय कर लीजिए कि भाई बिना जहान के तो आपको लगेगा कि जीवन तो बेकार है, पर भाई अगर जान नहीं होगी तो उस जहान का क्या करोगे जिसे भोग ही नहीं पाओगे। इसलिए दोनों को प्राथमिकता देते हुए और समझ बनाते हुए जान और जहान की बात करिए, जीपी और जीडीपी की बात करिए। और सच तो यह है कि आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं। लेकिन जब कभी मुझे चौराहे पे अगर 1000 लोगों को खड़ा होना होगा, तो पता नहीं आप लोग कहीं व्यस्त होंगे। और ऐसा मत करिएगा। अगर आप हमें सुन रहे हैं और हमको एक बड़ी आवाज बनना हो, तो
आप उसमें भागीदारी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप विद्वान लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने में आप लोग जुटे हैं और आने वाले समाज को, विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए जान और जहान, जीपी और जीडीपी, इन दोनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आने वाले समय में ये त्रासदी क्या है, कितनी भी आ जाए, वो इस देश को कम से कम इसलिए नहीं हिला सकती कि कि एक मैं 2 श्लोक कहूँगा अपने अंत में कहते हुए कि हम उस देश के लोग हैं, जहाँ पृथ्वी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। समुद्रस्य देवी पर्वतनम मंडपम विष्णुपत्नी नमस्तभ्यम पादम स्पर्श क्षमस्ये। हम उस देश के लोग हैं जिसने पृथ्वी को इतना महान बनाया था। विष्णु पत्नी पृथ्वी, हमने कहा कि हे पृथ्वी, तेरे पे पैर रखने से पहले मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। ये सम्मान, आदर दिया था हमने पृथ्वी को, और उस दृष्टि से हमने पृथ्वी को देखा, और आपने और मैंने छलनी कर दिया। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये शिक्षा दी गई थी, जिसको हमने एक किनारे कर दिया। और दूसरा श्लोक मैं कहूंगा, वो इस रूप में है कि आप जब व्यास आए थे तो व्यास ने कहा था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका कोई इलाज नहीं होता, और एक ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जब विप्रे कुमार के कथा, ब्राह्मण लोग कुमार में चले जाएंगे और राजा लोग वो नीच कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। और ऐसे ही समय में पत्नी पति से, पुत्र पिता से वैमनस्य रखेगा या अंतर रहेगा दोनों की सोच करने। और प्रभु ऐसे कलयुग के आने से पहले तो मुझे उठा दे रहा है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। व्यास कब आए थे, अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। व्यास ने तब कह दिया था कि एक ऐसा समाज आने वाला है कि जो सब कुछ खत्म कर देगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं जो व्यास ने कहा था, अगर हम आज नहीं संभले तो हम सब कुछ खो देंगे। क्योंकि स्थितियां आज उस तरह की ही गंभीर हो चुकी हैं। चाणक्य ने भी ऐसे ही कहा था, कलो दहस्त्राणि हरिस्त यदि मेदिनीम तदर्थ जानवी तो एवं तदर्थ ग्राम देवता। उसने कहा 10,000 साल जब कलयुग के बीत जाएंगे तो भगवान विष्णु गायब हो जाएंगे, मतलब पृथ्वी का नाश होगा, और उसके आधे में गंगा हमारा साथ छोड़ देगी, और उसके आधे में भी ग्राम देवता छोड़ देंगे, और सब कुछ हो रहा है। तो अब आप तय करिए कि जो कुछ भी हमारी परंपराओं ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, जिसका कभी हमने अनुसरण नहीं किया, हमने अपने आप को भटका दिया, हमने पश्चिम की हवाओं को महत्व दिया। लेकिन पहली बार भारत कहीं अलग थलग दिखाई देता है, इसलिए अब पूर्वी हवाओं पर विश्वास करिए जो हमारे यहां से चलती हैं। अब पश्चिमी हवाओं को में दम नहीं है। ये पूरब के ही लोग हैं जो दुनिया को सब कुछ दे सकते हैं, वो समय है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे सुना, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये संपर्क और रिश्ता बना रहेगा। आप सबको प्रणाम। आपने बहुत आपके उद्बोधन के लिए हम लोग बहुत ऋणी रहेंगे हमेशा, बिकॉज आपने अपना समय निकाला। और आप से एक मैसेज चाहिए था, क्योंकि आजकल हम लोग जैसे बात करते हैं, नई पीढ़ी को देखते हैं, इतना इकोनॉमिक उसमें एक लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर वो लोग बड़ी-बड़ी डिग्री लेते हैं,
and then they go and work for multinational companies. और आज का युवा जो है हर चीज बात कर रहा है उसमें पैकेज में, इतना पैकेज हमें मिला है। तो हाउ डू वी पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द यूथ? तो आप कुछ मैसेज दे दीजिए हमारे युवा के लिए आज और इन द प्रेजेंट सिचुएशन। वो बहुत देखिए ऐसा है कि अब हम जहां पे आ चुके हैं वहां पे हम यूथ को सरल जीवन जीने के लिए कहने के अधिकारी ही नहीं। आपने उनको जिस तरह की विलासिताओं के नशों में उतार दिया और अचानक आप कहने लगे ये करिए, अब एक ही रास्ता है। उनसे कहिए कि जब सब कुछ चाहिए होता है, जब सब कुछ चाहिए होता है तो सबका ही साथ होना चाहिए, और जब सबके साथ और सबकी बात हो तो किसी को भी गौण न समझें। अगर इस देश में कामगर मजदूर नहीं होते तो मैं एक सुंदर मकान नहीं बना सकता था। मैं अगर एक बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए सक्षम हूं तो जब तक वो नहीं होते तो मैं इस गाड़ी में भी नहीं घूम सकता था। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि तो प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि सबका साथ, मेरा इसको एक दूसरी तरह का इंटरप्रिटेशन है कि सबके साथ सबकी बात आज खाली मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आज जितने भी प्राणी हैं दुनिया में उन सबका एक ही योगदान है, सब बराबर के अधिकारी हैं। इसलिए जब भी इस तरह के विकास की लाभों की कल्पना करनी चाहिए तो इनको भी जोड़ना चाहिए। ये अपने लिए ही सबका साथ सबका हाथ से काम नहीं, बल्कि ये भी हमारे हिस्से होंगे, तभी हम एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को जन्म दे पाएंगे। वरना हम एक तरफा होंगे और फिर कोविड जैसी महामारी फिर हमको घेरेगी। अभी समय है हमारे इस पूरी विपदा से कुछ सीखने का। मेरा यूथ से सिर्फ ये कहना है कि आज उनके पास सब कुछ है, उनके पास पूरा गूगल है, लेकिन उनके पास गंगा नहीं। गंगा एक गूगल से कम नहीं है, लेकिन उसकी समझ नहीं है। और उसकी समझ बनाने के लिए कि आप दुनिया वर्चुअल से नहीं बना सकते। अब आपको अगर ये कल्पना करनी हो कि पृथ्वी और प्रकृति बेहतर हो तो शायद हमें अपनी जीवन शैली का ये हिस्सा बनाना पड़ेगा कि सबको लेकर चलना है। मैं उस जैव विविधता की बात कर रहा हूं जो कि हम खो चुके हैं, वरना आप फिर एक और बड़े संकट में बहुत शीघ्र ही आ जाएंगे। इसके साथ आपका धन्यवाद। जोशी जी, इस सार्थक संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कथन से हम इस सत्र को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपने कहा था कि माँ से माफी मांगनी होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा आपके इस उद्बोधन को सुनेंगे, समझेंगे और दिलों में उतारेंगे इस बात को कि जो जमीन है हमारी माँ है, जो कुछ किया है, जो गलतियां की हैं उनको सुधारेंगे, माँ से माफी मांगे। और माँ तो वो माँ ही जरूर हमें माफ करेगी और हम अपने देश के साथ साथ इस दुनिया को फिर से वही खूबसूरत और समृद्ध बनाने की ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत।